अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा हाजिर हैं एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। आइए नज़र डालते हैं कि प्रिंटिंग का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ। ओरिजिन ऑफ प्रिंटिंग। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ मैनी इन्वेंशंस लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग की ईजाद असल में कहानी है कई ईजादात की। प्रिंटिंग की तरफ बढ़ने से पहले आइए नज़र डालते हैं कि कागज़ की ईजाद कब और कहाँ हुई। पेपर यानी कागज़। एज अर्ली एज 3000 BC, द चाइना एंड इजिप्शियंस इंट्रोड्यूस पेपर्स। मॉडर्न वर्ड पेपर। 3000 BC में चीन और मिस्र में पेपरस मुतारिफ हुआ, जिसे हम आज की ज़ुबान में पेपर कहते हैं। पेपरस was writing material invented by Sui Lian in China and used the plant from which it was derived. Cyprus papyrus. पेपरस दिखाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मादा था जिस पर हम लिख सकते थे। सुई लियोन, जिनका ताल्लुक चीन से था, उन्होंने पेपरस की ईजाद एक पौधे के जरिए की थी जिसका नाम सिप्रस पेपरस था, जिसे हम पेपर प्लांट भी कहते हैं। पार्चमेंट। पार्चमेंट was tanned sheep skin while vellum prepared by skin of young calf. The skin surface was durable, which helped some ancient scrolls service into later centuries. इब्तदाई दौर में भीड़ और बछड़े की खाल को लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब बढ़ते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग की तरफ। ब्लॉक प्रिंटिंग। China was also responsible for the development of block printing. Characters outlines were carved out of a block of wood, and the raised part were inked and pressed against the piece of paper. The oldest surviving block printed book was published 868. Block printing is thought to have its origin in China over 4000 years ago, before disseminating throughout Asia and the world. The earliest record of block printing isn't on fabric, but on a book known as the Diamond Sutra, which was printed 3000 एग्जाम्पल वी स्टिल यूज इन अजरक पेंट्स। 4000 साल कबल चाइना की तरफ से ब्लॉक प्रिंटिंग ईजाद हुई। ब्लॉक प्रिंटिंग में लकड़ियों के टुकड़ों को एक मखसूस शक्ल में तराशा जाता था, फिर उन तराशे हुए टुकड़ों को स्याही में डिबोकर किसी सतह पर मस किया जाता था, जिससे लकड़ी के उभरे हुए हिस्से पर लगी स्याही उस सतह पर छप जाती थी। ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए सबसे पहली छापी जाने वाली किताब डायमंड सूत्रा थी, जो कि बुद्धिस्ट मज़हब की मजहबी किताब है। जैसा कि आप जानते हैं कि अजरक सकाफती विरसे में शामिल है और इसको एक मखसूस ब्लॉक प्रिंट से तैयार किया जाता है। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। मूवेबल टाइप created by Baixing in Song Dynasty, China. Movable type is similar to woodcut. Movable type allowed for much more flexible processes than hand copying or block printing. It was invented in 1041 by Baixing in China. Sheng used clay type which broke easily, but Wang Zheng later carved more durable type from wood. Eventually, invention of movable type metal printing press came during the Goryeo dynasty of Korea by Chi Wu Yun Yui. A book of the teachings of Buddhist priests was printed by hand from movable type in Korea in 1377. जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस दौर में मूवेबल टाइपिंग मशीन जो कि मूवेबल टाइप के ज़रिए प्रिंटिंग का काम सरअंजाम देती थी। There are thousands of Chinese characters. The benefits of the techniques was not as large as with alphabetic based language, which typically spurred scholarly pursuits in Song China and facilitated more creative modes of printing. Nevertheless, movable type was not extensively used in China until European style printing press was introduced. अब बढ़ते हैं प्रिंटिंग प्रेस की तरफ। प्रिंटिंग प्रेस। The earliest mention of the mechanized printing press in Europe appears in Strasbourg in 1439. It reveals construction of press for Johannes Gutenberg and his associates. Gutenberg's press and other of its era in Europe owed much to the medieval paper press, which was in turn modeled after the ancient wine and olive press of the Mediterranean area. A long handle was used to turn a heavy wooden screw, exerting downwards pressure against the paper, which was lit over the type mounted on a wooden platen. जॉन गटनबर्ग को छापे खाने का बानी करार दिया जाता है।
असल में इसने ये किया कि पहले से ज़ेरे इस्तेमाल मुतहर्रिक छपाई को इस अंदाज में बेहतर बनाया कि इससे बड़ी तादाद में और ज़्यादा दुरुस्ती के साथ तबात का अमल मुमकिन हुआ। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यूँ था कि एक लंबा हैंडल लकड़ी के भारी स्क्रू को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कागज़ के खिलाफ नीचे की तरफ दबाव डाला जाता था, जो कि लकड़ी के तख्ते पर नस्ब होता था। यूँ बड़े पैमाने पर एक ही वक्त में छपाई का सिलसिला चलता था। Gutenberg used his press to print an edition of the Bible in 1455. This Bible is the first complete extant book in the West, and it is one of the earliest books printed from movable type. In its essentials, the wooden press used by Gutenberg reigned supreme for more than 300 years, with a hardly varying rate of 250 sheets per hour printed on one side. गटनबर्ग ने वुडिंग प्रिंटिंग प्रेस पर 250 शीट्स पर फी घंटा सिंगल साइड पेपर पर छापा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद को, जिस पर इब्तदाई दौर में किताबें, अखबार, रिसाले शाया हुआ करते थे। अब आते हैं इब्तदाई दौर में प्रिंटिंग प्रेस की अहमियत और फ़वाइद पर। गटनबर्ग की ईजाद से यूरोप के लोगों में तालीम और शऊर का इजाफा हुआ। इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं अगले नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।